evening, I want to share a few points what the Lord has laid in my heart. और इस संध्या में मैं परमेश्वर के कुछ दिए हुए वचनों के द्वारा कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा. Morning, we had an amazing service. सुबह में बहुत अद्भुत ऐसी आराधना रही. And even as we were worshiping, the Lord laid a few words in my heart for the church. जैसे हम आराधना कर रहे थे कि परमेश्वर ने कुछ वचनों को मेरे हृदय में डाला कलीसिया की उन्नति के लिए. And if you want to note it down, you can note it down. There are a few words that the Lord put in my heart to share this with you. आप लिखना चाहते तो जरूर लिखें कि जो परमेश्वर ने कुछ वचन मेरे हृदय में रखे कि कलीसिया को दे, तो आप उसे लिखा करें. So I expect you to receive it prayerfully. तो मैं आशा रखता हूं कि आप प्रार्थना पूर्वक उसे अपनाएं. Divine association. Somebody say divine association. स्वर्गीय मेल जोल. Swargiya mel. Amen. So divine associations, divine separations. और स्वर्गीय मेल स्वर्गीय अलगाव. Amen. So whoever is associated, it's a divine association. Whoever is separated, it's a divine separation. जो कोई मिला हुआ है वो स्वर्गीय मेल से मिला हुआ है, जो अलग है वो अलग स्वर्गीय अलगाव से अलग हुआ है. Amen. And one beautiful thing the Lord put in my heart is, come on, look your neighbor, tell them you are in the right place. एक जरा जोर से कहे कि तुम सही जगह पे है. Amen. So never forget that you are in the right place. God has placed you in the right place. परमेश्वर ने आपको सही जगह रखा है, इसलिए आप सही जगह पे हैं. I would like to read one scripture portion before I could minister God's word. एक वचन मैं पढ़ना जरूर चाहूंगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे. So when I'm reading the scripture, I want you to pay close attention. और जब हम वचन पढ़ेंगे तो पूरा ध्यान देकर सुनिएगा. And after you read the scripture, I want you to look into my eyes. और जब हम वचन पढ़ चुके तो मेरी आंखों में देखें आप. I want you to turn with me to the book of 2 Timothy, दूसरा तिमुथियुस chapter 2, दूसरा अध्याय and verse 3 and 4 says like this. तीसरा वचन और चौथा वचन कुछ ऐसा कहता है. Now Paul the apostle, in writing to young Timothy, said like this. और तिमुथियुस को पौलुस कुछ बातें कह रहा है यहाँ पर. You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Verse 3. मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा. No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता. Now Paul the apostle, in writing to young Timothy, talks about three different and distinct characters. और पौलुस जो है अंतिम समय में तीन चरित्र को कुछ बातें दर्शा रहा है यहाँ पर. He talks about a young soldier, good soldier of Jesus Christ. और वो यीशु मसीह के जवान सेनापति के बारे में बोल रहा है जो योद्धा है. Second thing, he talks about a farmer. और जो पहले के बारे में भी बात किसान के बारे में भी बात कर रहा And he है. also talks about an athlete. और वो एक जो खिलाड़ी होता है उसके बारे में बता रहा है. So this evening I would like to share the qualities of a good soldier of Jesus Christ. और यीशु मसीह के अच्छे योद्धा के बारे में, अच्छे गुणों के बारे में मैं आपको आज शाम में बताऊंगा. Amen. Hallelujah. हालेलुया. Come on, somebody say soldier. कोई कहे योद्धा. जोर से बोलिए, योद्धा. 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 So I am talking about the qualities of a good soldier of Jesus Christ. और अच्छे योद्धा के गुणों के बारे में, चरित्र के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ. No, I was in the armed forces for 20 years. और 20 साल पहले मैं एंथियोस से ऐसी जगह था. So when I went to the training center, there was a huge caption and it was written like this. और वहाँ जो ट्रेनिंग सेंटर में वहाँ एक बहुत बड़ा रीति से कुछ लिखावट था. It says we make men out of boys. और वो कहता है कि We make men out of boys. हम पुरुषों को आवाज से बढ़कर और कहीं नहीं, हम बच्चों को पुरुष बनाते हैं. बच्चों को पुरुष बनाते हैं. So we make men out of boys. और हम बच्चों को पुरुष बनाते हैं. Now, irrespective of the rank that you hold in the armed forces, everyone is designated as a soldier. और जो आर्मी में होता है, सेना में होता है, हर कोई योद्धा कहलाता है. Amen. Irrespective of what rank, whether it's a colonel, whether it's whatever rank he is holding, he is called as a soldier first. चाहे कौन से भी अहदे पे हो क्यों ना हो, बड़े अहदों पे, छोटे अहदों पे, मध्यम, लेकिन वो योद्धा कहलाता है. You know, there's a saying that goes like this. ऐसा कुछ कहावत है उस बात के लिए. When the going gets tough, the tough get going. और जब उनसे सटीक बातें जाती तो वो बहुत ही मजबूत बनते हैं. I repeat.
मैं उसको दोहराता हूँ। When the going gets tough, the tough get going. जब बहुत ही मुश्किल घड़ी से गुजरते तो वो बहुत ही कठिन बन जाते और मजबूत बनते When हैं। things are difficult, strong people don't quit. They don't despair, but they hold on. मुश्किलों के हालात में मजबूत लोग छोड़ नहीं देते, हिम्मत नहीं हारते, लेकिन उसको थामे रहते हैं। The soldier in the armed forces is called as a jawan. और जो आम सोल्जर जो रहते, योद्धा रहते हैं, उनको जवान कहा जाता So है। irrespective of their age, they are called jawans. उनका कोई भी उम्र क्यों ना हो, लेकिन वो जवान कहलाते हैं। So a soldier is recruited when he is too young. और बहुत ही जवान ऐसे जब रहते हैं तो उनको भर्ती किया जाता है। So listen very carefully. As in the kingdom of God, when we are called, when we want to be soldiers, there is no age bar. और परमेश्वर के राज में जब हमें बुलाया गया और योद्धा करके चुना गया तो उसमें कोई उम्र की हद नहीं है। To be a soldier of the Lord Jesus Christ, we need to have a determination. यीशु मसीह के योद्धा होकर हमारे बीच में एक अच्छा निर्णय होना चाहिए कुछ No, बात का। the soldiers are called when they are very young. और जो योद्धा रहते हैं, जब वो बहुत ही जवान रहते हैं, तब चुने गए हुए रहते हैं। So they are given strenuous and rigorous training so that they can come out as a full-fledged soldier in the armed forces. बहुत ही सख्त ऐसी कठोर ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो बहुत मजबूत योद्धा बने और देश के लिए काम करें। So tonight I'm going to tell you the qualities of a good soldier in the kingdom of और God. परमेश्वर के राज में आज मैं बताऊंगा कि परमेश्वर के यीशु मसीह के अच्छे योद्धा होने के लिए क्या गुण लगते हैं। And the first thing that takes place in the life of a soldier is a soldier has to undergo training. और जो योद्धा होता है तो पहली बात उसकी जिंदगी में होती है, उसे एक शिक्षा के अंदर जाना पड़ता है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। You know, training brings discipline. शिक्षा जो है अनुशासन को लेकर आती है। Now, there are certain rules and regulations a soldier is supposed to follow in order to be called as a good soldier. और कुछ नियम और कुछ औहदे ऐसे लगाए हुए रहते हैं, उसे वो उन्हें मानना पड़ता है, तब जाकर वो योद्धा बनते So, हैं। the soldier of Christ, we have this training manual, the word of God, so that we can become good soldiers of Christ. मसीह के योद्धा होने के नाते हमारे पास एक परमेश्वर ने वचनों की किताब दी वाली है और वचन दी वाले, ताकि हम अच्छे योद्धा बने उसके लिए। So I'm going to throw a few points to you tonight so that you can strive to become a good soldier in the kingdom of और कुछ God. ऐसी बात है संध्या में आपको बताऊंगा जिसके द्वारा आप मसीह के एक अच्छे योद्धा बनेंगे। Amen. Ready? आप तैयार है? Are you ready? If you're noting that down, I encourage you, please note it down because it will help you in the long run. अगर लिख रहे हैं तो मैं सच में बढ़ावा देता हूं कि जरूर लिखें, आपके लिए बहुत इस्तेमालित होगा आने वाले दिन में। Number one, पहली बात। discipline in the kingdom of God makes you a good soldier of Jesus Christ. परमेश्वर के राज्य में जो अनुशासन है एक अच्छे योद्धा को बनाता है। Can somebody say discipline? अनुशासन। जोर से बोले अनुशासन। अनुशासन, अनुशासन ये अनुशासन। Discipline. Discipline plays a very vital role in the armed forces, and at the same time, discipline in the kingdom of God is very, very vital. अनुशासन जो है, जो सेना में बहुत ही मायने रखता है योद्धा के जीवन में, उसी तरह से मसीह जीवन में अनुशासन बहुत ही मूल तत्व है। Discipline in your appearance. आपके दिखा में आप जो दिखते हैं उसमें आपका अनुशासन। And a soldier cannot look shabby. और जो योद्धा होता है वो ढीला ऐसा एकदम लूज नहीं दिखता है। He cannot be dila dala. He has to be fit. He has to look. His appearance has to be trim and slim. उसका जो दिखना होता है बहुत ही मजबूत होता है और वो बहुत ही ट्रेनिंग से गुजर के सामर्थ्य दिखता है। वो He cannot be sust. वो सुस्त नहीं रहता एकदम। He has to be active all the time. और हमेशा वो एक्टिव रहता है और बना रहता है। Amen. He cannot grow his beard whenever he wants like. और जब कभी चाहे उसकी दाढ़ी बढ़ा नहीं सकता हूँ। ये ऐसे ही मैंने शेव नहीं किया। 22 साल जो है हर दिन रगड़ के मैंने इसको टफ किया। Since 20 years he's been shaving daily. We have no option in the kingdom, in the armed forces. You can't just grow your beard and look shabby. और सेना में आप दाढ़ी बढ़ा के ऐसे ही सुस्त नहीं दिख सकते। You can't wear hanky-panky clothes. और कुछ भी ऐसे कपड़े पहन के नहीं घूम Your सकते। appearance determines you
as a soldier in the armed forces. आपका दिखना ही वो आपको निश्चित करता है कि आप योद्धा हैं और आप सेना में हैं। Similarly, in the kingdom of God, उसी रीति से परमेश्वर के राज में your appearance determines a lot. आपका जो दिखना है बहुत बातों को दर्शाता है। I'm not against any kind of dresses. I don't specify you have to wear this kind of dress or that kind of dress. मैं ड्रेस पहनने के बारे में भेदभाव नहीं रखता कि यही पहनो वो मत पहनो, ऐसा नहीं मेरा But मानना। whatever you wear in the kingdom of God as a soldier of God should determine decency and discipline. और सभ्यता को दिखाना चाहिए। जो कोई आप ड्रेस पहने, जो कुछ भी एक पहने, अनुशासन में एक सभ्यता आपके द्वारा दिखे। You can't grow your hair however you feel like. और आपके बाल कैसे भी नहीं बढ़ा सकते जैसे मन चाहा। You can't grow your beard however you feel like. ऐसी दाढ़ियों की स्टाइल करनी, जैसा बढ़ा लेना ऐसा नहीं बढ़ा सकते। One day it was a Saturday, it was a holiday. एक बार सैटरडे शनिवार के दिन जो छुट्टी था, We were going for a walk. हम एक चल रहे थे कहीं, तो मेरा फ्रेंड ने क्या किया, शनिवार है आज शेविंग बंक मार देते हैं, तो he didn't shave. और शनिवार के दिन उन्होंने शेव नहीं किया उनके मित्र ने। So the instructor was coming across, he said, "अरे come here." और इंस्पेक्टर ने देखा और उन्होंने कहा, "ए, इधर आ, इधर आ। Shaving नहीं किया आज क्यों? Why didn't you shave today?" Saturday सर आज। उसने कहा, "Today is Saturday ना सर?" मैं अभी आपका सैटरडे निकलता हूँ, इधर आ जाओ। Then he said, "I will take care of that Saturday." He asked them, take those two bricks lying there और उन्होंने कहा कि 2 ईंट कर उठा वहां से और रगड़ो अपने। और अपने चेहरे चेहरे पे। पे रगड़ो, ऐसा कुछ बताया उन्होंने। So that is how discipline is prioritized in the armed forces. इसी तरह फिर वो सेना में जो अनुशासन है बहुत मूल तत्व है और मूल बात है। Discipline in your appearance. अनुशासन आपके दिखावट में। Because when we are in the kingdom of God, when we are called soldiers of Christ, we don't represent any mankind, but we represent the heaven. जब हम परमेश्वर के राज में यीशु मसीह के योद्धा कहलाते हैं तो हम कोई इंसान को नहीं दर्शाते लेकिन परमेश्वर को हम दर्शाते हैं। Amen. We represent the King of Kings and the Lord of Lords. हम राजाओं के राजा को, प्रभुओं के प्रभु को दर्शाते अपने जीवन के द्वारा। So that is why it is very, very important how we portray ourselves in the kingdom of God. तो कैसे पेश आते परमेश्वर के राज्य में, ये बहुत महत्व की बात है। Discipline in our dressing. और जो ड्रेसिंग में जो डिसिप्लिन अनुशासन है। Second thing, discipline in our body. In our body. और हमारे शरीर में जो अनुशासन। Amen. आमीन। Hallelujah. A soldier cannot grow his tummy. और ये जो योद्धा होता है वो पेट नहीं बढ़ा सकता। He cannot just grow his tummy like this, and he cannot be loose, ना क्या? ढीला ढाला नहीं रह सकता. He has to be fit. He has to look slim and trim. और ऐसा सुस्त नहीं हो सकता कि पेट बढ़ा लिया, ढेरी बढ़ा के घूम रहा है कहीं भी। Amen. Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? So a soldier in the kingdom of God also has a responsibility to maintain his body. और परमेश्वर के राज्य में योद्धा होने के नाते उसके शरीर को कैसे रखना है ये बात बहुत जरूरी है। Amen. The Bible says in 1 Corinthians chapter 6 and verse 19, don't you know that your bodies are temple of the Holy Ghost, and who dwells in it? The Holy Ghost dwells in you. पहली कुरिन्थियों में बहुत खूबी रीति से लिखा है, क्या आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है। We can't treat our bodies however we feel like. जैसे चाहे वैसे हम अपने शरीर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। We can't eat whatever we want. जो हम चाहें वो खा नहीं सकते, नहीं खाना चाहिए। We can't drink whatever we want. जो कोई पीना है वो हम नहीं पी सकते और पीना नहीं है। We must eat only that which is required. जो हमें खाना है वही खाना है, जो चाहिए वही खाना है बस। We cannot eat more than what is required. और जो खाना चाहिए उससे बढ़कर कुछ नहीं खाना है। जरूरत से बढ़कर भी नहीं खाना है, जरूरत से कम भी नहीं खाना है। What happens if we eat less than our requirement? क्या होगा जितना हमको चाहिए शरीर को अगर उससे हम कम खाए तो क्या होगा? We become weak. तो हम कमजोर हो जाएंगे। What happens if we overeat? अगर हम बहुत ज्यादा खाएंगे तो Overweight. ज्यादा वजन। If we overeat, we gain overweight. और ज्यादा खाए तो ज्यादा वजन भी बढ़ जाता So है। similarly in the kingdom of God, we need to maintain discipline in our bodies. ठीक उसी रीति से परमेश्वर के राज में हमारे शरीर को हम अनुशासन में लाना जरूरी Do है। you know the bodies that we have this evening? We are not the owners, but we are just the caretakers. और ये जो शरीर है क्या हम जानते हैं आज की शाम में जो हमें दिया गया है तो हम उसका देखभाल रखने वाले ये हमारा नहीं है। So please maintain your bodies. तो कृपया करके अपने शरीर का इस्तेमाल सही कीजिए और उसको मेंटेन करें। If you want to become a good soldier of Christ, you need to exercise your bodies every day and maintain your और bodies. यीशु मसीह के अच्छे योद्धा होने के नाते आपको कसरत करना है और आपके शरीर की देखभाल अच्छा करना है। थोड़ा सा वॉकिंग हो जाए।
थोड़ा सा रनिंग विनिंग हो जाए रन लिटिल बिट, तो थोड़ा हम लोग मेंटेन अपने आप को कर पाए, ताकि हम लोग क्या करें, एक प्रभु के राज्य का एक योद्धा बन सके। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। So don't cause harm to your bodies. Don't cause harm to your bodies. तो अपने शरीर को कोई हानि ना पहुंचाए। Amen. कुछ लोग दारू स्टाइल के लिए पीते हैं, है ना? They drink for style. स्टाइल के लिए ड्रिंकिंग करते हैं लोग। How many of you seen drunkards? कितने लोगों ने ड्रंकर्ड्स को देखा है? अब लोगों ने नहीं पियक्कड़ देखा। लोगों को कौन कौन देखा, हाथ ऊपर करो ना। सारे ने देखा ऑलमोस्ट। सारे लोगों ने देखा। Have you seen how they walk? क्या आप देखा वो कैसे चलते हैं? देखा है? अरे बोलो, I want you to प्लीज respond. रेस्पॉन्ड करो, हाँ? रेस्पॉन्ड दो। You've seen? Do they walk straight? क्या वो सीधा चलते हैं? Do they talk in sense? और क्या वो चेतना में बात करते हैं? अच्छा, Have you seen them walking on the road? क्या आपने देखा है रास्ते पे जब वो चला करते कैसे चलते हैं? ऐसे ऐसे जाते रहते हैं, टेढ़ा वेढ़ा घूमते रहते हैं, ऐसा है। है ना? जैसे वीना जैसा सुंदर लड़की को देख ऐसा कर लेते हैं। लुकिंग गर्ल लाइक वीना, दे विल डू। There were two drunkards who were walking on the road. दो पियक्कड़ लोग जो रास्ते से चल रहे थे। So one drunkard told the another drunkard, एक पियक्कड़ ने दूसरे प्यारे पियक्कड़ से कहा, I want to go to London. मुझे लंदन जाना है। So the other drunkard said, very easy. दूसरे ने कहा बहुत आसान है भाई। कैसे? तो बोला कैसे? जैसे पोस्ट लेटर पे लंदन लंदन लिख के भेजते हैं, उसी तरह लंदन लंदन लिख के भेज देते हैं, अपने आप को चले जाते हैं। और वो कहा कि जैसे पोस्ट करते हैं अपन लंदन लिखावट के द्वारा, वैसे लिख कर लेंगे। So they both wrote London London, they buried their heads in the post dabba. और दोनों भी लंदन लंदन करके पोस्ट बॉक्स जो रहता है उनका जो शरीर वहां पे रख लिए। So रात में वो they fell asleep in the post box. और पोस्ट बॉक्स में वो सो गए रात में। So 1-1:30 बजे तो पुलिस वाला जो निकलता है Round बीट के पे, देखा ये दोनों को, अपना लाठी लिया, रबा 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 पीछे से। पुलिस ने देखकर उनको अच्छा धोया। तो एक पीवट ने दूसरे को बोला, यार तुमने बताया ना इंग्लैंड जाने के लिए इतना स्टैंप लगता है। So whatever they talk is nonsense. जो कोई वो कहते हैं और पियक्कड़ लोग वो बहुत ही खराब बातें करते So we cannot do anything that would cause harm to our bodies. हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाए। है ना, वो जो क्या खाते हैं ना, गुटखा खाते हैं। So my wife and I, we were in Hubli, we were standing in the marriage register office. हुबली में मैरिज रजिस्टर ऑफिस के पास वो और उनकी पत्नी खड़े थे। So there was a board written there, इधर थूकना मना है। वहां पे ऐसा लिखा हुआ था कि यहाँ थूकना मना है। और इतना थूक दिया मना पे, उधर लिखा इधर थूकना है। पूरा चेंज ही कर दिया बोर्ड को। The best painters are found in India. और अच्छे पेंटर जो है ये भारत में पाए जाते हैं। And the best paintings are found in the government offices in India. और गवर्नमेंट ऑफिसेस में अच्छे अच्छे पेंटिंग आपको दिखेंगे थूक थूक के बनाए हुए। Red color, pink color. पूरे लाल रंग के और पिंक कलर के। No, it is written on those. किसी ने गया, वो कोई गया उधर दुकान पे, बोला भैया वो तेरा गुटखा देना कैंसर वाला। चाहकर ऐसा मांगते कि कैंसर होने का गुटखा दे दो। They have written in that tobacco causes cancer. वहां पे लिखा होता है कि ये जो कैंसर को बढ़ावा देता है इसलिए ना खाए। Do you know tobacco causes cancer, alcohol causes dancer? So we need to maintain our bodies because God has given us a responsibility as caretakers. तो हमारे शरीर का हमें अच्छे से ख्याल रखना है क्योंकि परमेश्वर ने दी हुई ये शरीर है और उसका अच्छा देखभाल करने वाले बनना है। Because our bodies are the temples of the Holy Ghost and the Holy Ghost dwells in us. क्योंकि हमारा जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा इसमें निवास करता है। So that is why it is very, very important to maintain discipline in our appearance, maintain discipline in our bodies. तो बहुत जरूरी है कि अनुशासन हमारे दिखावट में, हमारे दिखने में और हमारे शरीर में दिख के आए। Amen. Amen. Hallelujah. So if you want to be a good soldier of Christ, you have a responsibility of taking care of your bodies. तो आप अगर प्रभु यीशु मसीह के अच्छे योद्धा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके शरीर का अच्छा ख्याल रखें। Amen. Are you with me this evening? क्या आप मेरे साथ इस संध्या में? So number 1 is discipline. पहली बात अनुशासन। Number 2, a soldier is always on time.
और जो अगली बात जो है, ये जो योद्धा होता है हमेशा वक्त पे रहता है। Somebody say on time. वक्त Tell your पे। neighbor on time. उनको देखकर हिला के बोलिए on time. सही समय पर. सही समय पे, समय के पहले। Amen. You know, I like what is written outside there. It's written कृपया समय पर आइए. बाहर जो लिखा है उनको बहुत पसंद आया कि ऐसा लिखा है कि समय पर आए, कृपा Amen. करके। We need to always be on time. हमें हमेशा समय पे आने वाले लोग बनना है। The second quality of a soldier is he should always be punctual. वो हमेशा समयनिष्ठ रहता है, समय के साथ चलता है। The 20 years I worked in the armed forces, not even a day I went late to my office. 20 साल उन्होंने सेवा करी और कभी भी वो लेट नहीं हुए ऑफिस में, दफ्तर If में। you go late to the office, you have to give an explanation. There is a process to that. अगर आप देर हो जाती दफ्तर जाने के लिए तो आपको बहुत बड़ा ऐसा लिख कर देना होता है कि क्यों देर हो गई और सारा एक्सप्लेनेशन करना होता So है। for a soldier of Christ in the kingdom of God has to be punctual every day of his life. मसीह के अच्छे योद्धा होने के नाते हमारे दैनंदिन नित्य जीवन में हमें समयनिष्ठ होना है। Amen. Hallelujah. So when we are so serious about our work, when we are so serious about our professions, why are we so casual when it comes to the kingdom of God? और हम अपने काम को लेकर बहुत ही गंभीर रहते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के राज की बात आती है, परमेश्वर की बात आती है, तो हम बहुत ढीले से ऐसे पेश आते हैं। Amen. Can somebody tell me what happens if you go late to your office? कोई कहेगा कि अगर आपके दफ्तर में लेट जाओगे तो क्या होगा? मेमो देना पड़ता है ना, सैलरी भी डाउन हो जाती Salary direct हो जाता है. Okay, then है, वार्निंग्स मिलते हैं, half day cut हो जाता है, warnings मिलता है और हाँ और ऐसे हाँ, करके what is that? निकाल देते हैं फिर। हाँ बॉस मारता है हाँ वर्क अफेक्ट होता है. ओके काम पे come on प्रभाव somebody. पड़ता है, काम पे भी प्रभाव पड़ता है, रेपुटेशन खराब होता है. वेरी गुड. कीर्ति खराब हो जाती है और अपना। इफ यू कंटिन्यू और ऐसे करे तो निकाल देंगे हाँ? ना फिर, हाँ लेट मार्क होता है. लेट मार्क। शैल आई टेल यू इन प्लेन वर्ड्स? क्या आप सीधा सीधा बताओ आपको क्या सीधा सीधा होगा? बताओ. यू विल बी किक्ड आउट. आपको लात मारी जाएगी फिर। यू बिलीव दैट? क्या विश्वास रखते हैं? When we are so dealt with so severely in our professions, why are we so casual when it comes to the kingdom of God? और हमारे पेशे में हम बहुत गंभीर रीति से पेश आते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में बहुत ही आसान बातों को ले लेते हैं। If you want to be a good soldier of Christ, you need to have this quality of being punctual. और आपको अगर मसीह के अच्छे योद्धा बनना है तो आपको समय पे चलने वाले लोग बनना है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। When it is time for you to be in the house of God, you better be there. और जब आपको परमेश्वर के हुजूरी में होना है तो टाइम पे रहें। When it is time for you to be in the cottage meeting, you better be on time. और जब कॉटेज मीटिंग में आपको जाना होता है तो वक्त में वहां पहुंच जाए। When you maintain time, when you are punctual, there is a special blessing. I want to tell you, there is a special favor that is released upon your life. और जब आप वक्त के साथ चलते, परमेश्वर के राज में वक्त के प्रति ईमानदारी बताते, तो खास परमेश्वर की कृपा और आशीष रहती है। Amen. Come on, look to your neighbor. Tell them, be punctual to the एक house दूसरे of से God. देखकर अच्छे से जोर से बोले कि समय में चलने वाले लोग बने। ऐसे समय ऐसे से। हाथ ऐसा करके उनको बोलिए, be punctual. सही ऐसा। समय पर रहे, समय के पहले रहे, समय के साथ चले। समय के साथ चले. आमीन। ऐसा करके बोले, हाथ ऐसा करके बोले, सही समय पर रहे. सही समय पे जाए। Brother, always I come on time, brother. I am the only one on time, brother. Nobody else. मैं क्या करूं आगे? ब्रदर, मैं हमेशा वक्त से पहले आके बढ़ जाता हूं और कोई नहीं रहता और बार बार पहले आके क्या कर लूंगा मैं? How many of you seen a running race? कितने लोगों ने दौड़ को देखा है, दौड़ की स्पर्धा को? When you run the race, if you come first, will you tell, अरे मैं ही अकेला आया, बाकी सब पीछे, मैं वापस चले जाऊं? Do you know the winner in a running race has an award, has a prize? और क्या आप जानते हैं रनिंग रेस में जब हम पहले आ जाते हैं और क्या ऐसा कहते हैं कि मैं पहले आया, मुझे पीछे जान दो, फिर ऐसा कुछ, क्योंकि जब जीतते हैं तो हमें इनाम भी मिलता है। Amen. So when you are punctual, when you are on time, you have a special favor over your life. और जब आप वक्त के प्रति ईमानदार है और वक्त के साथ चलते हैं तो परमेश्वर की बड़ी कृपा आपके जिंदगी में आ जाती है। Amen. You know, God is not Indian Railways. परमेश्वर भारतीय रेल नहीं है। Amen. He is never late. He is not before time. He is on time.
वो वक्त के पहले भी नहीं और पीछे भी नहीं, लेकिन वो सही समय में For he रहता है। makes all things beautiful in his time. और वो सारी बातों को बहुत ही खूबसूरत रीति से अच्छा बनाता है उसके समय में। So don't miss out on the timing of God. तो परमेश्वर के वक्त के पहले कुछ ऐसी अपेक्षाएं ना करें और उससे ना सताएं। When you are supposed to be here at 6:30, you better be here at 6:30 because the Lord might have something at 6:30. जब 6:30 बजे आपको यहाँ आना होता है तो 6:30 बजे तक पहुंच जाइए, क्योंकि 6:30 बजे की आशीष होती है और कुछ काम परमेश्वर का होता है वहां। Amen. No, we are not playing God, but we are serious about the kingdom. और हम परमेश्वर के साथ खेलने वाले ना लोग बने, लेकिन उसके राज्य के प्रति गंभीर लोग The बने। kingdom of God is not a fairy tale, और परमेश्वर का राज्य जो है कहानियां की तरह नहीं है, but I कहानियां am की तरह। talking about being a good soldier of Jesus Christ. और मैं अच्छा यीशु मसीह का योद्धा बनना चाहता So number 1, discipline. हूं। पहली बात अनुशासन, Number 2, punctuality. दूसरी बात जो है समय निष्ठता, The third quality of a good soldier of Christ. तीसरा अच्छा गुण जो यीशु मसीह के अच्छे योद्धा का है वो है Now, in the armed forces, a soldier is always required to be obedient. हमेशा आज्ञाकारी बनना, ये एक गुण उनमें होता है। Can somebody say आज्ञाकारी? आज्ञाकारी, तो जोर से बोले आज्ञाकारी। आज्ञाकारी, एक दूसरे को देख के बोले आज्ञाकारी, आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। आज्ञाकारी, जोर से बोले आज्ञाकारी। आज्ञाकारी। The third important quality is a soldier is required to be obedient all the time. तीसरी बात जो बहुत ही महत्व की है, जो योद्धा से अपेक्षित है, वो ये है कि वो आज्ञाकारी योद्धा रहे। You know, in the armed forces, there is something called that you can never say no to your boss. सेना में कुछ ऐसा होता है, आप आपके बड़े अधिकारी को, औहदे को ना नहीं कह सकते। No, you have to sign a bond, and what is written in the bond is whether you are asked to go by air, land, or sea, you can never refuse, but you have to be obedient every moment of the day. जो कोई आपसे वहां कहा जाता है, आपको वो करना ही होता है, चाहे वायु से जाए, चाहे पैदल जाए, जो भी करे, लेकिन आपको करना ही होता है वो बात। So in the kingdom of God, a soldier is required to be obedient all the time. परमेश्वर के राज्य में एक अच्छे योद्धा से अपेक्षित है कि वो आज्ञाकारी रहे। A soldier of Christ cannot say, "Oh, बहुत रात देरी हो गया, मेरे को थोड़ा रेस्ट करने दो." No, it doesn't work like that. वो कुछ इस तरह नहीं कह सकता कि आज बहुत लेट हो गया और मुझे आराम करना है और मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कह A सकता। soldier of Christ is always swift. और जो मसीह योद्धा जो रहता हमेशा आज्ञाकारी और फिट रहता है, He is always obedient. और वो हमेशा आज्ञा मानने वाला होता है। He never questions what is asked for him to do. जो उससे कहा जाता है करने के लिए, उसके प्रति वो सवाल नहीं उठाता If है। he finds there is somebody who is in requirement of the gospel, he is very swift to be there. और जहाँ सुसमाचार देने की बारी आती है, उसको कहा जाता है कि वहां दो, तो वो वहां पे तैयारी इधर था है। Whatever is required of a good soldier of Christ, he has no option but to say yes to the command of Christ. और जो कोई मसीह योद्धा से अपेक्षित है, जो कहा जाता है उसे वो ना नहीं कर सकता, उसे वो करना होता है। What is that instruction manual for a soldier to be obedient? और निर्देश पुस्तिका क्या है उसके लिए कि वो आज्ञाकारी बने? This is the training manual. This is the given word of Christ for every soldier of Christ requires to be obedient to it. और ट्रेनिंग मैनुअल उसके लिए परमेश्वर के वचन ही है, वचनों के आधार पे ही उसको आज्ञाकारी बनना जरूरी है। Amen. Amen. Hallelujah. We have no ifs and buts in the kingdom of God. There are only divine guts. किंतु परंतु यदि ऐसे आपके पास बातें नहीं है, आपको करना ही है जो बात है। Amen. Amen. If something is written, something is demanded from us, from the word, we have no option but to do it. वचन के द्वारा जो कहा जाता है, जो अपेक्षित रखा जाता है, वो आपको करना ही है, उधर कोई ऑप्शन नहीं है कि ना करें। Amen. Hallelujah. हालेलुया। God loves obedient people. परमेश्वर जो आज्ञाकारी बच्चे उसके उनसे बहुत प्यार करते हैं। And the Bible says in 1 Samuel chapter 15 and verse 22 that obedience is better than sacrifice. और पहले शमूएल में परमेश्वर ने खूबी रीति से अपने वचनों के द्वारा बताया है कि आज्ञाकारी बनना बलिदान चढ़ाने से बेहतर और अच्छा है। Somebody say amen. आमेन। So it is very, very important for us to be obedient
all the time. बहुत ही जरूरी है कि हम हर एक के लिए हमेशा आज्ञाकारी बने रहे हर समय में। We can never say no to the guidelines of the word. आप परमेश्वर के द्वारा जो वचनों के द्वारा गाइडलाइंस आती है उसे ना नहीं कर सकते। If you're serious with God, अगर आप परमेश्वर वचनों के प्रति गंभीर हैं, if you're serious with the principles of the kingdom of God, आप परमेश्वर के राज्य के धार्मिकता के द्वारा सिद्धांतों पर आप गंभीर हैं, we have no option but to say yes. आपको ना ऐसा विकल्प नहीं, आपको हाँ ही बोलना पड़ेगा। Amen. Amen. Hallelujah. Come on, tell your neighbor, you have no option. किसी को तो देख के कहे कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। We have no option. कोई विकल्प नहीं है। We have to make a choice. आपको एक चुनाव करना है। That's why Moses said, choose this day whom you will serve. Joshua said, choose this day whom you will serve. योशुआ ने बहुत खूबी रीति से कहा, आप चुन लो कि किसकी सेवा आप करोगे। But if you say yes to my God, यदि आप मेरे परमेश्वर को हाँ कहते हो, you better be obedient to him all the time. तो हमेशा हर वक्त उसके प्रति आज्ञाकारी बने रहो। But if you're not serious with my God, अगर परमेश्वर के प्रति उसके वचनों के प्रति आप गंभीर ना हो, you can refrain from being obedient. तो आप अआज्ञाकारी बने रह सकते पीछे। But tonight I urge the body of Christ, the church here, that you be obedient so that you can become good soldiers of Christ. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर के यीशु मसीह के अच्छे योद्धा होने के नाते आप आज्ञाकारी बने। Amen. Hallelujah. Are you with me this evening? क्या आप मेरे साथ इस संध्या में? Are you grasping the points of how you can become a good soldier of Christ? क्या आप कुछ सीख रहे कि कैसे आप अच्छे योद्धा यीशु मसीह के बन सकते हैं? First point is discipline. पहली बात अनुशासन। Second point is punctuality. दूसरी बात जो समय निष्ठता। Third point is soldier is required to be obedient. तीसरी बात जो है आज्ञाकारिता। Fourth important point of a soldier of Christ. चौथी महत्व की बात जो यीशु मसीह की योद्धा से अपेक्षित है। In the armed forces, a soldier is required to obey his superiors all the time. और सेना में ऐसा जरूरी है कि जो योद्धा होता है अपने बड़े अधिकारी का हमेशा उसको मानना पड़ता He है। has no option. उसके पास कोई विकल्प नहीं होता He है। has to respect his superiors. उसके बड़े अधिकारी को आदर देना होता No, है। if there is a superior officer coming across, if he deserves salute, you have to salute. If he deserves a greeting, you have to greet him. If you don't do it, you are dealt with very severely. और यदि आपके सामने से चल के बड़ा अधिकारी आ रहा है, उसको सल्यूट मारना है तो आपको सल्यूट मारना होता है, आपको आदर देना होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो उसके परिणाम बड़े होते So हैं। similarly, in the kingdom of God, we have a mandate that is to respect the anointing of an anointed servant. तो हमारा फर्ज बनता है यीशु मसीह के अच्छे होना योद्धा होने के नाते कि अभिषेक जिस व्यक्ति के ऊपर है उसकी हम माने, उसका सुने। Amen. Hallelujah. हालेलुया। You may not like what I am telling you this evening, हो सकता है कि आपको पसंद ना आए बात जो मैं कह रहा हूं आपसे, but there is no option. लेकिन कोई विकल्प है ही नहीं। I have to speak on the qualities of a soldier, and if you follow it, you're going to be enlisted as good soldiers. योद्धा के गुण मुझे बताना जरूरी है जो परमेश्वर ने दिए और आपको मानना जरूरी है। A good soldier in the kingdom of God is required to pay or respect his superiors or the anointed ones. अच्छा योद्धा से अपेक्षित है कि अपने बड़े अधिकारियों को आदर दे, उनका सम्मान करे। The Bible says, the Bible says, the psalmist writes that God protects his anointed as the apple of his eye. और वचन कहता है कि परमेश्वर अपने चुने हुए अभिषिक्तों का अपने आंखों की पुतली के द्वारा संभालता है। We are not in an anointing competition in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में अभिषेक का कोई स्पर्धा लगी हुई नहीं है। Amen. He is less anointed, I am more anointed. वो कम अभिषिक्त है, मैं उससे बढ़कर अभिषिक्त हूँ। Nobody can play like me. कोई मेरे समान के बजा नहीं सकता। Nobody can lead the worship like I do. मेरी तरह कोई आराधना नहीं चला सकता। Nobody can preach the way I do. जिस तरह से मैं प्रचार करता हूँ कोई कर नहीं सकता। If you know somebody is anointed, he has to be revered in accordance to God's word. जब आप जानते हो कि जो किसी अभिषिक्त व्यक्ति के बारे में अभिषिक्त व्यक्ति कुछ वहां खड़ा है तो उसको आपको आदर देना है। Amen. We cannot take the people of God, the anointing of God for granted. और परमेश्वर के अभिषेक को हल्के में ना ले, अभिषिक्त लोगों को हल्के में ना ले। क्या एलिएजर क्या गाना गाया? What is singing like that? वर्शिप लीडर है वो। Is he worship leader? उससे अच्छा तो मैं बजा लेता हूँ। I play better than him. बाद में ऊपर से आपको वो बजाएगा। Then he will play wonderfully. So we are not in a competition, anointing competition. We need to respect one another's anointing, and that's what God likes.
हम अभिषेक के स्पर्धा में नहीं, एक दूसरे के अभिषेक को हमें सम्मान देना है, और वही तो परमेश्वर चाहते हैं। And let's not be casual about anointed servants of God. Let's not take them for granted. परमेश्वर के अभिषेक सेवकों को हल्के में ना ले, ऐसे ही ना ले, उनका सम्मान करें। अरे वो ऐसे ही है, He is like that only. उससे अच्छा तो मैं प्रीच करता हूँ। I preach better than him. Never talk against the anointed servants of God. परमेश्वर के अभिषेक सेवकों के खिलाफ बात ना करें। How many of you know the story of Miriam? मरियम की कहानी कितने लोगों को मालूम है? उसके बारे में एक बात हुई थी। In Numbers chapter 12, गिनती की किताब 12 अध्याय। you don't need to read, you don't need to open your Bibles, you can note down. In Numbers chapter 12, I tell you a story what happens. एक कहानी बताऊंगा जो गिनती की किताब 12 में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बताऊंगा मैं। No, Miriam, the sister of Moses, मूसा की बहन मरियम, she said, has God spoken only through Moses? Has not God spoken through me also? वो कहती है क्या परमेश्वर ने मूसा से ही बातें की, क्या उसने मेरे से बातें नहीं की? क्या बड़ा बड़ा anointing है उसका, मैं भी anointed हूँ। What anointing he has, I also have anointing. Numbers chapter 12 and verse 3. The Bible says, God ऐकला। और 12 अध्याय और 3 वचन में कहा कि परमेश्वर ने ये बात सुनी और देखी। Next. Verse 2. 2 verse 2. And the Lord heard it. और परमेश्वर ने ये बात सुनी। Somebody say heard. कोई कहे सुनी। सुने, हाँ? सुनी। So, कोई बोले सुनी। किसने सुना? परमेश्वर ने सुना। You know what happened? Then God stood for Moses. He said, how dare you talk against my servant Moses? He has been faithful in all my house. और उसने परमेश्वर ने अपने अभिषेक के बारे में उससे जवाब दिया, उसकी बहन को, ये मेरा चुना हुआ सेवक है और ये हमेशा आज्ञाकारी, ये मेरा अच्छा बंदा है। And you know the result? She became leprous. इसका नतीजा पता है, उसके बहन को बड़ी बीमारी आ गई फिर ऐसा कहने से। So people of God, let's not take the anointing of an anointed servant for granted. तो परमेश्वर के अभिषेक को हल्के में ना ले। Somebody said, किसी ने कहा, you can play with fire, you can play with water, you can play with electricity, but if you dare not play with the anointing of an anointed servant of God. किसी ने बहुत खूबी से कहा, आप आग के साथ खेल सकते हो, पानी के साथ खेल सकते हो और ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ खेल सकते हो, लेकिन परमेश्वर के अभिषेक सेवक के साथ नहीं खेल सकते। No, Elisha was takla. और एलीशा जो है टकला था। No, some youngsters said takla आ गया। और कोई तरुण लोग बोलते थे टकला आ गया। They started making fun of this man. और वो इस व्यक्ति का खिल्ली उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। You know what happened? तो क्या हुआ पता है? पता है ना story क्या हुआ? क्या हुआ? You know what happened? एक बार बता दो पास। He brought a curse upon the youngsters. तो उन्होंने पूरा श्राप को लेकर आ गए। And you know what happened? Suddenly the bears appeared. और अचानक वो वहाँ पे भालू आ गया। And they caused so much harm to the youngsters, they had to run away from there. और बहुत ही उन्हें हानि पहुंचाई भालू ने, और ये सारे जवान भाग गए फिर। So if you want to be a good soldier of Christ, you need to revere, you need to respect the anointing of an anointed servant of यीशु God. मसीह के अच्छे योद्धा बनने के लिए, होने के लिए आपको एक अभिषेक दास का आदर करना है, सम्मान करना है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Are you learning something this क्या morning, आप कुछ this सीख evening? रहे हैं आज की संध्या में? Discipline, अनुशासन, punctual, समय निष्ठता, obedience, आज्ञाकारिता, respect the anointing. अभिषेक का सम्मान। 5th point, 5वीं बात, a soldier is to be discerning. Discernment. परखने वाला बनना होता है, योद्धा को परख सके बातों को। Somebody say परखने वाला. परखने वाला। Come on, look to your neighbor, tell them परखने वाला. बाजू में बैठे को कहो परखने वाला। परखने वाला. परखने वाला। Is it the right word? Yeah, परखने वाला. परखना। No, discernment is discerning what is from God and what is not from God. परखना बात ये है कि क्या परमेश्वर की ओर से और क्या परमेश्वर की ओर से नहीं है। Discernment is discerning, understanding what is right and what is wrong. और परखना ये है कि वो समझना एक बात को कि क्या सही है और क्या गलत है। The enemy has thousands of years of experience. और जो बैरी है, हमारा शत्रु है, उसको हजारों साल का अनुभव है। A soldier has to be very, very discerning because the enemy
can just lay a trap somehow. और योद्धा को बहुत ही होशियार बनना होता है और परखना होता है कि क्योंकि जो ये जो हमारा बैरी है वो चालाक है A soldier is to be vigilant all the time. और हमेशा चौकन्ना होना होता है उसे He is to be wakeful. He has to be vigilant. He has to be observant all the time. और हमेशा निरीक्षण करने वाला, बातों को जांचने वाला, समझने वाला होना So होता even है। in the kingdom of God, परमेश्वर के राज में भी a soldier is to be he is always to be discerning. योद्धा को अच्छा परखना जरूरी है, समझना और करना। The enemy can just come and lay a trap anytime. और जो कभी भी जाल डाल सकता है जो बैरी हमारा है, But he who is discerning can alone escape the fiery darts of the evil one. लेकिन जो परखता है तो आग के समान बाणों को भी बुझा सकता है। Amen. Hallelujah. The devil does not come in black clothes or white clothes. शैतान जो है काले और सफेद कपड़ों में नहीं आता। The devil does not come with two long teeth at the edge of your lips here. और जो शैतान जो है धारदार ऐसे दांतों के साथ नहीं आता। ऐसे न्यूज चैनल वाले बोलते हैं ना, कातिल आपके घर में ही हो सकता है। कुछ ऐसा न्यूज में बताया जाता है। तो बेटा जो है बाप पे शक करने लगता है। So you will not even understand the devil is right beside you. But if you are discerning, you will understand the traps of the evil one. अगर आप अच्छे परखने वाले तो आप समझ जाओगे कि शैतान तुम्हारे बाजू में बैठा और कैसी युक्तियां कर रहे हैं। अगर आप परखने वाले नहीं है तो आप समझ नहीं पाओगे उसके बाणों को। People of God, this is not the time to be sleeping. और ये सोने का समय नहीं है और ऐसे ही वक्त बिताने का समय नहीं है। We need to be alert. हमें हमेशा चौकन्ना रहना है। The days that we are living is not good. और दिन जिसमें हम जी रहे हैं वो अच्छे नहीं है। But as good soldier of Christ is always alert in his mind so that he can identify the traps of the evil one. लेकिन अच्छा योद्धा जो हमेशा मन में चौकन्ना रहता है ताकि वो बैरी के गांव को बुझा सके और उसके खिलाफ करे। He is always prepared. हमेशा तैयार रहता है। A soldier of Christ is always prepared. यीशु मसीह का योद्धा हमेशा तैयार रहता है। Prepared in prayer, प्रार्थना में तैयारी, prepared in a relationship with God. परमेश्वर के साथ के रिश्ते में तैयारी। Now, one man with God is a majority, no matter how much big the enemy's army is. और एक व्यक्ति जो सामर्थ के साथ रहता है, जो कितने भी बड़ा सेना क्यों ना आ जाए उसके आगे, उसके खिलाफ काम But करेगा। when you have an intimate relationship with God, you can just identify the schemes of the evil one. लेकिन आप अगर परमेश्वर के अच्छे योद्धा के समान प्रार्थना में हो तो आप जान जाओगे परख कर कि सेना का क्या मेरे पे आक्रमण होने वाला है। Amen. Hallelujah. So ask God so that He would give you the gift of discernment. परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर परख की आत्मा आपको दे। Amen. Don't be deceived. धोखे में ना आए। आजकल वो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत हो गया। What you see is not what you get all the time. ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसा होता है जो आप वहां दिखता है बहुत आकर्षण करता है लेकिन जब आता है ऐसा नहीं रहता है। So one day a youngster was browsing the internet. और एक जवान जो है इंटरनेट पे था और कुछ कर रहा था। Suddenly one advertisement flashes across the screen. और एक विज्ञापन उसके स्क्रीन के सामने आ गई। Mosquito repellent, 1,200 rupees. और 1200 रुपए में मच्छर मारने का कुछ खास ऐसा मिल रहा So था। he said all out वो सब तो 50 रुपए में मिल जाता है, 1200 इसमें कुछ ना कुछ खासियत है। तो उसको लगा कि यार 50-100 में भी आजकल बहुत सारा मिल जाता है मच्छरों को मारने का, तो ये 1200 में तो कुछ खास रहेगा। ठकाठक he orders that 1,200 rupees. तो उन्हें जल्दी से पट बोल के ऑर्डर दे दिया और ऑर्डर भी डाल दिया Now, 1200 every day is inquisitive, every day is checking कहाँ तक पहुंचा मेरा shipping, कहाँ और तक हर दिन पहुंचा। वो परख जांच रहा था, देख रहा था कि उसका वो पार्सल कब आ रहा है और कब So आएगा। every day the shipping is moving closer to him. और हर The- दिन वो the item. जो है उसके करीब वो आ रहा था जो उसने खरीदा था। He's more excited one, कुछ ना कुछ है इसमें। और बहुत ही उत्साहित था, कुछ तो खास इसमें है। So finally the consignment arrives. और फिर बाद में वो वस्तु आ जाती So है he goes and so excited he removes that big box. और वो बड़ा ऐसा जो बक्सा आता है तो उसे खोलता है निकाल दिया, he removes paper, newspaper आता है, उसको निकाल दिया. और उसमें एक न्यूज़पेपर था वो निकाल दिया। Then he begins to remove everything, lot of stuff inside, he removes it. और बहुत कचरा उसमें पैकिंग का मटेरियल वो सारा निकाल So दिया। inside there is such a small package. उसमें एक छोटा सा ऐसा पैकेट था Then he opens that. और वो फिर वो खोलता है उसे So he finds two stones there. और उसमें दो पत्थर वो पाता है। On one stone it is written A and on the other stone it is written B. एक पत्थर पे ए लिखा होता है, दूसरे पत्थर पे बी। So ये सोचा कि ये कौन सा mosquito repellent है भाई? तो उसको लगा यार ऐसा कैसा होता है ये। So he reads the instruction manual. तो वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो होता पुस्तिका वो पढ़ता है। So it is written there. वहां लिखा था Take a mosquito, एक मच्छर को ले लो keep it on the stone called A. और ए नाम के लिखे हुए पत्थर पे रखो Take the stone called B and hit it. और बी लिखे हुए पत्थर से उसको मारो।
deception everywhere. हर कहीं धोखा रखा हुआ है. Please don't fall prey to all such things. ऐसे बातों के शिकार ना बने. Every girl who comes and smiles thrice is not the right life partner for you. हर एक लड़की जो अच्छी मुस्कान के साथ सामने आती है वही तुम्हारे जीवन की संगिनी है, ऐसा जरूरी नहीं है. Many young people come and tell me, हर बहुत से जवान मेरे पास आते हैं और कहते हैं, whenever I see this girl, brother, something happens in me. जब कभी ब्रदर मैं ये लड़की को देखता हूँ कुछ तो अंदर होता है. क्या होता है? क्या होता है? धक 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 धक. दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, भागते रहती है धड़ धड़ कर. They get married, शादी हो जाती है, not even 6 months. 6 महीने भी नहीं बीते. So many marriages have come in disaster because of deception. और बहुत से लोगों का शादीशुदा जिंदगी बिखर गया, खराब हो गया क्योंकि धोखे के कारण. Whenever I pray, Lord, only that girl's face comes, brother. जब कभी मैं प्रार्थना करता हूं तो वही लड़की का चेहरा मेरे सामने आ जाता है. बहुत लोगों को देख लिया मैंने. Never fall prey to it. उसके शिकार ना बने. Everyone who comes and tells you, हर कोई- girls, sisters, I love you more than anyone else, never fall prey to that. ऐसा कोई लड़का लड़की आपसे कहेगा कि मैं सबसे बढ़कर तुझसे प्यार करता हूं तो उसके शिकार ना बने. If there is anyone who loves you more than his life, it is the Lord. अगर Amen. ऐसा कोई है जो सबसे बढ़कर तुम्हारे जीवन से भी बढ़कर अपने से बढ़कर प्यार करता है वो परमेश्वर. I love you more than anyone else. हम पे सबसे बढ़कर मैं प्यार करता हूँ. 3 महीने बाद I love you more than anyone else. और 3 महीने के बाद और कहीं दूसरे से मैं और सबसे बढ़कर प्यार Brother, करता I हूँ. gave my heart to her, brother. हाँ मैं मेरा दिल किसी को देती हूँ. कितना दिल है पता नहीं, ब्रदर विलियम. इधर से लेके उधर, उधर से लेके रोटेशन. रोटेशन चलता रहता है, ऐसा घुमाओ. Be discerning. हम परखने वाले बने. Tell your neighbor, be discerning. बोले कि परखना सीखो, परखो, परख की आत्मा रहे. Tell them, be discerning. बोले समझो, परखो. Everyone who comes into your house is not a blessing. Please make it. Please understand. जो कोई आपके घर आता है वो परमेश्वर की ओर से जरूरी नहीं है. Be discerning. परखो उसे. Amen. आमीन. A good soldier of Christ is always discerning. अच्छा योद्धा यीशु मसीह का हमेशा परखता है, जांचता है. कितना points हो गया? 5. 5 हो गया. What are those 5 points? कौन से पॉइंट से बोले? Discipline, अनुशासन, punctuality, समय निष्ठता, obedience, आज्ञाकारिता, respect the anointing, आदर जो सम्मान जो है अनंटिंग का, discernment. परख. आगे बढ़े. A soldier in the armed forces is required to be weapon trained. Weapon trained, weapon. हथियार के साथ रहे ये अपेक्षित रहता है, हमेशा हथियार के साथ. नहीं, weapon trained. He needs to know how to use the वो weapons. हथियार कैसा इस्तेमाल करना है उसको जानना जरूरी है एक योद्धा को. No, in the armed forces, every soldier has to undergo training every 3 months. और हर 3 महीने में उनका एक ट्रेनिंग होता है कि नए औजार आ रहे, जो भी औजार आ रहे हैं उस पे उनका ट्रेनिंग होता है. So every weapon that is introduced, he has to be acquainted with it, the usage. हर कोई जो हथियार उनके सामने लाया जाता तो उसे अच्छे से सीखना होता है उसे कैसे चलाए. So in the kingdom of God, a soldier of Christ also need to know the combat skills. और परमेश्वर के राज में यीशु मसीह के अच्छे योद्धा होने के नाते आपको अच्छे गुणों से भरना है कि कैसा इस्तेमाल करें. He needs to be weapon trained. और वो हथियार का इस्तेमाल करने वाला बने. You know, our war is not against the flesh and blood. हमारा युद्ध जो है शरीर और रक्त इससे नहीं है. Can somebody say amen? आमीन. Hallelujah. You believe it? You agree with me? क्या Our enemy is not our neighbor. और हमारा जो शत्रु बैरी है हमारा पड़ोसी नहीं है. In the church, our enemies are not the other family. और कलीसिया में हमारा शत्रु दूसरा परिवार कोई नहीं है. Our war is not against flesh and blood, कि हमारा युद्ध जो है शरीर और रक्त से नहीं है, but against the principalities and the powers of dark world. लेकिन अंधकार की शक्तियों से, सिद्धांतों से है. Amen. आमीन. So a soldier of Christ needs to be weapon trained. He needs to know how to use his weapons. परमेश्वर के अच्छे योद्धा यीशु मसीह के होने के नाते उसे समझना है कि उसको हथियार अच्छे से कैसे चलाने आए. Ephesians 6, Paul the apostle talks about the weapons of warfare. और इफिसियों की 6ठी अध्याय में पौलुस बहुत अच्छे रीति से बताता है कि युद्ध की जो हथियार है कैसे चलाएं. So when your word
when you are word based, you will know what the weapons of warfare are. और जब आप वचनों पर आधारित है, वचन जानते तो आप जानेंगे कि कैसे हथियार को चलाएं। We are not on the defensive, we are on the offensive. और हम सिर्फ रक्षात्मक नहीं होते लेकिन आक्रामक भी होते You हैं। know, when I was in my 12th standard, जब मैं 12वीं कक्षा में था, उस समय 1995 में जो था वो सब बाइक्स जो हैंकी पैंकी बाइक्स नहीं आए होते उस समय। 95 की बात है, जब ऐसे आजकल की जो बाइकों की समान बाइक्स नहीं थे, टू व्हीलर्स अलग थे। You know, there was a moped called Luna. कितने लोग जानते हैं Luna? लूना थी उस वक्त, लूना ज्यादातर चलती वो थी। Luna था मेरे पास, तो we used to go to the tuition which was around 5 kilometers away from my house. और 5 किलोमीटर घर से दूर था ट्यूशन की क्लास, वहां उन्हें जाना होता था। So every day morning 5 o'clock the tuition started. So 4:30 I used to leave from my house. और सुबह 5 बजे ट्यूशन क्लास शुरू हो जाता था, 4:30 बजे मुझे घर से निकलना होता था। There was one particular area where Chintu's house was, that was called as the electricity board area. और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एरिया करके एक जगह थी, वहां जाना होता था। Every day morning there were 2 dogs that used to come and run behind us. और हर दिन हर सुबह में 2 कुत्ते ऐसे थे हमारे पीछे दौड़ा करते थे। And every day when we passed through that locality, we used to do circus, keeping our legs like this because the dogs were running. और जब कभी वो वहां से गुजरते थे वो एरिया से, हमको ऐसा बच के ऐसा निकल के भागना होता पूरा सर्कस होता था लूना पे। था। लूना में पूरा सर्कस होता था, आड़ा टेढ़ा घुमा के भागने का। Every day we were fed up with those dogs. हर दिन हम तंग आ गए थे कुत्तों से जो पीछे पड़े थे। One day I decided, now I have to take care of these dogs. और एक दिन मैंने ठान लिया कि इनको तो अभी मैं सिखाऊंगा कुछ। लूना रोक दिया, लूना ही रोक दिया, उसके ऊपर टर्न करके उसके ऊपर चला दिया। और वो जो लूना का हैंडल था उसकी ओर करके उसके ऊपर जैसे ही मैं उसके ऊपर गया, वो अपना जो पूंछ है पैर के अंदर रखे क्योंकि भाग गया वो। कुत्ते कुछ ऐसे पेश आए, बाद में दुम दबा के भाग गए वहां से। लातों की बूथ बातों से नहीं, बातों से नहीं मानता। Is the devil chasing you? यदि शैतान तुम्हारा पीछा कर रहा है क्या? If you are a soldier of Christ, if you know how to use your weapons, now it's time you chase the devil. जब शैतान आपका पीछा करता है, अगर आप यीशु मसीह के अच्छे योद्धा है, हथियार जानते चलाना, तो आप उसके पीछे लगेंगे। Don't be fed up. अरे हमेशा ये हो रहा है, हमेशा ये हो रहा है। Now you turn back and give the devil its due. भले ही हम तंग आ चुके हैं शैतान से, लेकिन हम मुड़कर उसका पीछा कर सकते हैं हथियार को लेकर। Amen. But you need to know to use the weapons that God has given to you. तो आपको उससे पहले जानना है जो परमेश्वर ने हथियार आपको दिया कैसे चलाए। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Don't be complaining all the time. हमेशा हमेशा हमारे घर में बीमारी है, हमेशा हमारे घर में we have lack, we don't have this, we don't have that. You don't have anything. Now it's time that you give back what the devil deserves. और हमेशा शिकायत करने वाले लोग ना बने, मेरे घर में ये नहीं है, ये समस्या है, ये पीड़ा है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसे योद्धा बने जो हथियार को चलाकर शैतान को हराए। Amen. Amen. Know who you are in Christ and know who your God is so that you can be victorious. जान लो कि आपका परमेश्वर कौन है और आप परमेश्वर में कौन हो, तब आप विजेता ठहरोगे। I am not called to be a chicken, but I am called to be an eagle. मैं मुर्गी बनने के लिए बुलाया नहीं गया, लेकिन उकाब की नाई ऊंचा उड़ने के लिए बुलाया गया हूं। I do not have to carry the chicken mentality, but I am called to have the eagle mind. मेरी सोच मुर्गी समान ना हो, लेकिन मेरी सोच उकाब के समान ऊंची उड़ने वाली हो। You know why people end up in disaster? Because they fail to recognize their identity. लोग विपत्तियों में क्यों फंस जाते, क्यों गिर जाते, क्योंकि उनकी सच्ची पहचान वो समझ नहीं पाते। Amen. Recognize your identity and the weapons that the Lord has given to you, and when you utilize it, you will see the devil turning its back and running away. आपकी पहचान को मसीह में और आपके हथियार को जो आपको दिया गया मसीह में, वो अच्छे से जान लो, तब शैतान का पीछा करोगे तो भाग जाएगा आपके जिंदगी से। Amen. Discipline, अनुशासन, punctuality, समय निष्ठता, obedience, आज्ञाकारिता, respecting the anointing, अभिषेक का आदर, discernment, परख की आत्मा, weapons of warfare. और जो हथियार है उसको सीखना। Point number 7. 7वां पॉइंट, A soldier is required to be brave.
और साहसी धाड़सी बने, ऐसा अपेक्षित रहता है जो सेना रहता है। Somebody say brave. कई कई Tell your साहसी, neighbor brave. साहसी, Tell them be brave. हमेशा बोले साहसी बने। In the morning also I spoke about this being brave. सुबह मैंने बताया कि साहसी कैसा बने, Be brave. Come on, somebody say brave. साहसी। We are not called to be timid people. We are called to be brave people. हम डरपोक लोग होने के लिए नहीं बुलाए गए, लेकिन हम सामर्थ्य और साहसी लोग No, बोले। Peter was a darpok. पतरस जो है डरपोक था, He ran for his life. वो उसके जीवन के लिए भागा एक He समय, denied Jesus thrice. और He denied Jesus thrice. 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। But after the encounter of the Holy Spirit, लेकिन जब पवित्र आत्मा से सामना हुआ the उसका, same Peter वही पतरस stood before the same people. और वही लोगों के सामने खड़ा एक Brave Peter. बहुत ही साहसी रीति से, And this time when he spoke the word, और जब वो वचन को कह रहा था, not 10, not 20, 3,000 souls were added to the kingdom. 10 नहीं, 20 नहीं, 3,000 लोग सुन रहे थे उसे। Amen. हालेलुया। Know who your God is. जानो कि आप कौन हो, मसीह में आपकी क्या पहचान है। Never underestimate your God. और परमेश्वर को नीचे मत रखो, आपके परमेश्वर को। Don't put God in a box. परमेश्वर को एक बक्से में डाल के ना रखें। Our God is unlimited. और हमारा परमेश्वर असीमित परमेश्वर है। Amen. Tell your neighbor, our God is unlimited. कहें कि हमारा परमेश्वर असीमित है, So we have all the reason to be brave. और सभी को हमको साहसी होना चाहिए, है ना? हिम्मतवान A होना चाहिए। soldier cannot say, नहीं उधर वो है, इधर ये है, वो मार देगा मुझे, वो ये कर देगा, कुछ नहीं होगा। Soldier can't excuse like this, he will kill me, I can't go there, I can't do this. You got me? Now one day I was preaching in Haryana. एक बार मैं हरियाणा में प्रचार कर रहा था, As we were preaching, जैसे हम प्रचार कर रहे थे, now I could see some disturbance across the meeting there. और उस मीटिंग में कुछ तो भी बाधाएं आ रही थी, समस्या आ रही थी, All the youngsters, they began to plot something against me and my team. और बहुत से जवान लोग मेरे खिलाफ और मेरे टीम के खिलाफ कुछ कर रहे थे। I योजना। identified. वो समझ गए कि कुछ तो भी खिचड़ी पकड़ी है। I told God, Lord, now you have to prove that you are God. तो मैंने कहा, परमेश्वर तुझे साबित करना है कि तू महान सच्चा परमेश्वर है, So that every tantrum of these fellows are going to come down. ताकि हर कोई योजना है वो बना रहे उनके नीचे गिराई जाए। So I made a statement in the ground there. तो ग्राउंड में मैंने ऐसा कुछ कहा, Anybody sick here? कोई यहाँ बीमार है, Anybody sick here? I कोई want you to बीमार- come here. मैं चाहता हूँ कि आगे आए, ऐसा कहे वो। The young people, they started plotting. They wanted to throw stones and this and that at the end. और वो षड्यंत्र रचे हुए थे, योजनाएं बनाए थे कि आखिरी में मीटिंग के पत्थर वाह करेंगे, पत्थर मारेंगे। So one couple brought a small, around 3-year-old baby with them. एक शादीशुदा जोड़े ने, पति पत्नी ने एक 3 साल के बच्चे को लेकर आए, And the baby's leg was slant like this. और उस बच्चे का पैर ऐसा कुछ थोड़ा टेढ़ा मुड़ा हुआ था, टेढ़ा था, And I made a statement like this. और मैंने कुछ कहा ऐसा, For you to know that Jesus is the Lord, आपको जानना है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, प्रभु है। I want you to know that the God is a God of signs and wonders and miracles. मैं चाहता है कि आप जान जाओ कि परमेश्वर चिन्ह चमत्कार और महान काम करने वाला And है। we serve a living God. परमेश्वर, हम जिंदा परमेश्वर की सेवा करते And I हैं। said every sickness is going to disappear now. हर कोई बीमारी यहाँ से गायब हो जाएगी, निकल के भाग जाएगी। And as I said that, जैसे मैंने वो कहा, through the hundreds of eyes were a witness that this slant leg was coming back to normal. और हजारों लोगों की आंखें देख रही थी कि उसका जो पैर है सीधा हो रहा था। When you stand for God, God stands for you. जब आप परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं तो परमेश्वर आपके लिए खड़े रहता है। Amen. Amen. We need to be brave. When we know who our God is, we shall not fear anything. हमें साहसी लोग बनना है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई हमारे खिलाफ हो सकता है। Our hairs are numbered. हमारे बाल भी गिने हुए हैं। Amen. Amen. कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा. Tell your neighbor, कोई कुछ No नहीं one can बिगाड़ेगा. do. No one can do wrong. Do you know who we are? क्या आप जानते हैं कि हम कौन हैं? Do you know who your God is? क्या आप जानते हैं आपका परमेश्वर कौन है? It's very powerful. वो बहुत ही सामर्थी परमेश्वर है। He said, call unto me and I will answer you and I will show you great and amazing और things. वो कहता कि मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और तुझे महान बातों को बताऊंगा। Amen. So you don't have to fear anybody. तो आपको किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वो ये करेगा, ये कुछ करेगा, वो कुछ करेगा. Nothing. कोई कुछ नहीं करेगा. They will turn their backs and run away from you because the King of Kings and the Lord of Lords
is your God. और ये वो करेगा ये करेगा करके डरे ना, क्योंकि महान सामर्थ्य जिंदा परमेश्वर आपके साथ है। सब कुछ उनकी बातें उनके ऊपर आ जाएगी। कितना पॉइंट्स हो गया? 7 पॉइंट्स। आगे बढ़े। ओके, एंड 8th पॉइंट, 8वां बात, a soldier is required to be loyal. और वो ईमानदारी अपेक्षित रहती है योद्धा से। Come on, somebody say loyal. ईमानदार, Loyal. ईमानदारी, एक दूसरे को देख के बोले ईमानदार, ईमानदार, ईमानदार। ईमानदार। In the kingdom of God there is no retirement. There is no retirement. परमेश्वर के राज में रिटायरमेंट नहीं है। अभी मैं रिटायर्ड हूँ फौज से, वो अपने पेशे में जो सेना से तो रिटायर्ड है, but in the kingdom of God there is no retirement. लेकिन परमेश्वर के राज में रिटायरमेंट नाम की चीज नहीं है। Tell your neighbor, no retirement. गए, रिटायरमेंट नहीं है। Tell them no retirement. नो रिटायरमेंट। You are supposed to be loyal the whole of your life. आपको जिंदगी भर ईमानदार बने रहना है। Amen. Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। I need to be loyal all of my life. मेरे जिंदगी भर मुझे परमेश्वर के प्रति ईमानदार बने रहना है। Now I will not fear anything. मैं किसी से डरूंगा नहीं, I will not be disloyal to my God. और मैं मेरे परमेश्वर के प्रति बेईमानदार नहीं हूँगा। But whatever is asked to me, or whatever is told to me, I shall be always loyal. जो कुछ मुझे कहा गया करने के लिए दिया गया, मैं उसके प्रति ईमानदारी दिखाऊंगा। Amen. आमेन। Hallelujah. Shall we revise all the points? क्या हम अपने पॉइंट्स को दोहराएं अभी फिर से? पहली बात कहें जोर से। कम ऑन। Discipline, अनुशासन, punctuality, समयनिष्ठता, obedience, आज्ञाकारिता, respect the anointing, अभिषेक का आदर, discernment, परख की आत्मा, weapon trained, औजार का इस्तेमाल, be brave, साहसी, loyalty. ईमानदारी। After all these things, सभी बातों के बाद I qualify myself as a good soldier of Jesus Christ. और मैं इन सारी बातें करने से दर्शाता हूँ कि मैं यीशु मसीह का अच्छा योद्धा That's हूँ। why Paul the apostle said, इसलिए पौलुस ने कहा, become a good soldier of Jesus Christ so that you may please him who has enlisted you as a soldier. अच्छे योद्धा के समान यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्यता दिखा और अच्छे योद्धा के समान पेश आप। Amen. Shall we all stand up in our places? हम अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे। Tonight, आज की रात I want you to make a commitment in the presence of God. और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के हुजूरी में एक समर्पण दिखाए। If you are serious with God, अगर आप परमेश्वर के प्रति गंभीर है, if you want to become that soldier for Christ, अगर आप मसीह के अच्छे योद्धा बनना चाहते हैं, tonight, आज की रात the Lord wants to do something in your life. परमेश्वर आपके जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। I request you to stand up in your places. In a few minutes' time, we're going to close. कुछ समय के लिए सारे लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, विनती करता हूँ। I want every eye to be closed for the next few minutes. और चंद मिनटों के लिए अपनी आंखें सब लोग बंद करें। I want to ask you this question. और मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, Do you want to become that good soldier for God? क्या आप यीशु मसीह के अच्छे योद्धा बनना चाहते हैं? Do you want to become that good soldier for the kingdom of God? क्या आप परमेश्वर के राज्य के लिए यीशु मसीह के अच्छे योद्धा बनना चाहते हैं? Tonight, आज की रात if you say yes to God, अगर आप परमेश्वर को हाँ कहते हैं, if you're serious with God, अगर आप परमेश्वर के प्रति गंभीर हैं, and if you're willing to recommit your life to God, यदि आप चाहते हैं कि आपके फिर से समर्पण आप करें आपके जिंदगी में, if you say, Lord, I'm going to follow all these points and my aim is to become a soldier, जब आप कहते हैं कि परमेश्वर जो बातें हमें सिखाई गई सारे पॉइंट्स को मैं सीखना चाहता हूं और तेरे अच्छा योद्धा बनना चाहता irrespective of who you are, हूं, कोई भी आप क्यों ना हो, कुछ भी आप क्यों ना हो, irrespective of what gender you are, कौन सा भी आपका पुरुष हो या स्त्री क्यों ना हो आप, but if you want to become that soldier, लेकिन आप एक अच्छा योद्धा होना चाहते हैं,
I want you to raise up your right hand wherever you are. मैं चाहता हूँ कि आपके सीधे हाथ को स्वर्ग की ओर करें जहाँ कहीं खड़े हैं। You don't raise your hand to me. आप आपके हाथ मेरे लिए खड़े ना करें। You don't raise your hand to the pastor here. आप पासबान के लिए खड़े ना करते। But when you raise your hand, you're making a covenant with God. लेकिन जब आप एक अपना हाथ ऊपर करते तो परमेश्वर से करार बांधते हो। You're telling God, Lord, I make a covenant with you. और आप कहते कि परमेश्वर मैं आपसे करार कर रहा हूँ। I want to become the soldier of God. मैं एक अच्छा योद्धा बनना चाहता हूँ मसीह का। When you become a soldier of Christ, जब आप यीशु मसीह के योद्धा बनते हो you're going to be non-compromising. तो आप कभी समझौता नहीं करते हैं। No turning back. पीछे मुड़ना नहीं है आप, Just walking ahead. आगे बढ़ते जाएं। Come on, lift up your hands. Those all. आइए अपने हाथों को सीधे हाथ को ऊपर करें। I want to pray for you tonight. आंखें बंद रखें। Can I ask you to lift both of your hands? क्या मैं चाहता हूँ दोनों हाथों को अपने स्वर्ग की ओर करें इस वक्त। Can you tell God, क्या आप परमेश्वर से कह सकते हैं touch me this evening, oh God. इस शाम में इस रात्रि में मुझे छू ले प्रभु। Say this, Lord, touch me. कहें परमेश्वर मुझे छू ले। Enlist me as a soldier tonight. मुझे तेरा योद्धा बना, नियुक्त कर। Lord, tonight I pray for every hand that is represented under this roof. और परमेश्वर मैं हर एक हाथों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो इस यहाँ पे खड़े हैं और ऊपर उठाए हैं। That they shall be called as good soldiers in your kingdom. वो तेरे राज में अच्छे योद्धा बनेंगे। You know their hearts, oh God. आप उनके दिलों को जानते परमेश्वर। You are looking at their hands, oh God. आप देख रहे हैं उनके हाथों को। From now on I pray, लेकिन आज से मैं प्रार्थना करता हूँ आज they're going to go back victoriously, oh Lord. हम जयवंत से बढ़कर आगे बढ़ेंगे चलेंगे। They're going to be more than conquerors, oh हम God. जयवंत से भी बढ़कर होकर चलेंगे। They're going to go march ahead in the kingdom of God. और कोई भेदभाव परमेश्वर के राज में नहीं है। They are no more quitters, but they are winners, oh God. आप परमेश्वर में जीती है, हार नहीं है। Can you say this? I am not a quitter, but I am a winner. मैं हार मानने वाला नहीं हूँ ऐसा कहे, मैं जीतने वाला हूँ। Can you say this? I am a winner. कहे ऐसा मैं जीतने I am वाला a हूँ। winner. मैं विजेता हूँ। Come on, say this. I am a winner. कहे मैं विजेता हूँ। मैं विजेता हूँ. मैं विजेता हूँ। Touch their lives tonight, oh God. परमेश्वर उनकी जिंदगी को छू ले इस वक्त अभी। We give you all the glory tonight, oh God. सब महिमा सम्मान है पिता तुझे देते हैं। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Come on, open your eyes. आइए अपने आंखें खोलें। Can you say this with me? क्या आप कह सकते हैं मेरे साथ? I am a winner. मैं विजेता हूँ। Come on, look to your neighbor. Tell them, I am a winner. एक दूसरे से देख के मैं विजेता हूँ। ऐसा करके बोलिए, मैं विजेता हूँ. मैं विजेता हूँ। Now tell them, you are a winner. कहे आप विजेता हैं। You are a winner. आप विजेता हैं। Come on, give the Lord a loud clap offering and praise Him tonight. अच्छी तालियों के साथ परमेश्वर की जय करो। Come on, make some noise tonight in the kingdom presence of जोर God. की ताली